एक मिनट, हाँ, just a second. Maybe it'll get on. I think it is on now in my system also. Yes, ma'am. Yes. Now it is on. Yes. Okay. Thank God. Okay. Now we are ready to begin the class. I'm going to present my screen now. Everyone get ready, be alert, and pay attention on the screen. Okay, beta? Yes. And no more chatting in the boxes. All the boys, I want you to pay attention. No disturbing the class in between. All right. Yes. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is Yes, ma'am. this is Unit 1, Chapter 2, Wonderful Waste. Okay. So these were the phrases that I gave you that day, right? Did anyone make sentences out of these 4? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I sent it to you also. Wait. Yes, ma'am. Wait. Let me come back to the screen once. Yes. Now, who has not done it? Raise your hands. किसने कोशिश नहीं करी? Why, Advita, Amolika, Manasvi, Ananya, Vartika? Why have you not tried? आया नहीं क्या? अगर आया नहीं तो अलग बात है, but try नहीं किया तो ये गलत I बात. forget. You forgot. Yes, I ma'am. forget. I forgot. Forget is present tense. Forgot is that something you did in the past. तो तुमने कोशिश करी पर तुम भूल गई, तो you have to say I forgot, है ना? I forgot. Forgot. Manasvi, you also forgot. Yes, ma'am. Tansh, I forgot. Ma'am, I have also forgot. Ma'am, I have also forgot. I also forget. नहीं, गलत English. I also forgot. I मैं also forgot. also forgot. हाँ. अब कल ये मत बोलना, कल को पूजा पी ने बोला मैम सॉरी आई फॉरगेट. हम नहीं. कल दे देंगे आपको लिखकर. नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करना बेटा. मैं बता तो मैं दूंगी, इट इज नॉट अबाउट दैट, बट क्योंकि हमने मीनिंग्स डिस्कस कर लिए थे ना, तो सो आई वांटेड यू टू ट्राई मेकिंग अ सेंटेंस. ओके, दैट्स ऑल. सो आज ट्राई कल करें. दिखा देंगे ठीक है, आई एम नॉट शोइंग द सेंटेंसेस टुडे. I am going to move ahead with the difficult words and the meanings and the sentences that we have made. Okay, and you all try to make sentences out of these 4. इसमें से कुछ तो आ ही जाएंगे हमारे वर्ड मीनिंग्स में वैसे. सो यू विल गेट एन आइडिया. ओके, कमिंग बैक टू द स्क्रीन. Okay, now take out your copies. The first new word that we read in this chapter is sternly. I hope everyone can see the screen. We can write it, ma'am. Yes, please. The first meaning word is sternly, the meaning of which is strictly or firmly. यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में कुछ चीज बताना. जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस दैट आई हैव मेड इज द वार्डन. वार्डन कौन होती है? जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको जो लुक आफ्टर करती हैं, वो कौन होती हैं? वार्डन. सो वो सब रूल्स जो है ना, सब बच्चों को बहुत ही स्ट्रिक्टली वो वाले रूल्स हॉस्टल में फॉलो करने होते हैं. तो ये रूल्स कौन ले डाउन करते हैं? वार्डन्स. एंड वार्डन्स जो है वो स्ट्रिक्टली वो रूल्स को सब बच्चों को बताते हैं. तो उसी से रिलेटेड आई हैव मेड अ सेंटेंस. द वार्डन स्टर्नली रेड अलाउड the rules to all the girls of the hostel. Okay. Did you understand? Did everybody understand the meaning of sternly? Yes, ma'am. किसी को नहीं समझ में आया? Yes, ma'am. पूछ सकते हैं. Second word is tempting. Tempting means something very attracting or very enticing. Enticing means कि बहुत ही
जो हमें अट्रैक्ट करे, टेम्प्ट करे खाने के लिए या कुछ करने के लिए, बहुत ही हमें टेम्प्ट करे, अट्रैक्ट करे, उसको बोलते हैं टेम्पटिंग। फॉर एग्जाम्पल, द होम मेड चॉकलेट आइसक्रीम लुक्स टेम्पटिंग। जब हमारे सामने आइसक्रीम हो मजेदार सी, तो हम लोग को क्या लगता है, वी आर टेम्पटेड टू ईट, है ना। Did everyone get the word tempting? Did everybody understand? Yes, ma'am. बेटा मुझे ना कुछ बच्चों की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, जैसे मैं बताऊं, आई वॉन्ट टू आस्क सर्टन पीपल, ठीक है, मेरे को जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, वो मुझे लग रहा है उनको आ रहा है। अब मैं कुछ ऐसे बच्चों से पूछ रही हूँ जिनको, जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं क्लास में। कौन है ये? अजय इज देयर? अजय धाकड़ इज देयर? Yes, ma'am. Anish is there? Yes, ma'am. Right. So you both, did you both understand the two words that we discussed? Sternly and tempting. समझ आया आप दोनों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या मतलब होता है अजय? टेम्पटिंग का क्या मतलब है, बिना देखे बताना मुझे। अजय, what is the meaning of tempting? अजय को मेरी आवाज आ रही है क्या? और ऐसा नहीं करना है कि मैम ने कुछ पूछ लिया तो मीटिंग से चले गए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही? मैम आपकी आवाज आ रही है। मैम योर वॉइस इज क्लियर। My आवाज is clear. Okay. Okay, so sweet. Okay, now Anish, can you tell me the meaning of tempting? Attracting and Enticing. Enticing is another new word for you, but it is a very good word to use for the word tempting. Yes, Advika, what are you asking, beta? Ma'am, we have to write examples also. Example matlab I have used this word in a sentence to make you understand. So you write the example so that you understand it better, and you, if you want, you can try making your own sentences as well at home. Okay, I have given you one example so that you can understand the word, and if you like to make, if you want to learn this word better, you can use it in another sentence that you want to make, okay, on your own, with your own imagination and creativity. ओके, नाउ संकेत है क्लास में? बेटा संकेत, आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन आपको आ रहा है समझ में? टेम्पटिंग और स्टर्नली, दो वर्ड्स जो हमने किए हैं अभी, उसका मीनिंग। आपका वीडियो ऑन है? हाँ, संकेत तो रिस्पॉन्ड करता है वैसे। हाँ ठीक है। शांतनु, विनम्र, यथार्थ। Yes, ma'am. You all there? Are you all attentive? Yes, and ma'am. listening? Yes, ma'am. हाँ बिल्कुल, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, एक भी वर्ड बेटा मिस मत करना, ये सब न्यू वर्ड्स हैं एंड आई वांट यू टू लर्न देम बेटर। सिक्स्थ में आपको जब लिखने के लिए काम आएंगे ना, व्हेन यू हैव मोर ऑफ राइटिंग टू डू इन इंग्लिश, the knowledge of new words like enticing, tempting, sternly, they make your quality of writing better. So always try, हमेशा कोशिश करो कि रोज 2 4 5 न्यू वर्ड सीखो। आज हमें इंग्लिश क्लास में मौका मिल रहा है न्यू वर्ड सीखने का, सो उनको ध्यान से सुन के सीखो, ठीक है? बी अटेंटिव, बी अलर्ट एंड try and learn them at home and make your own sentences, ताकि तुम्हारी written English भी बहुत अच्छी हो जाए। बहुत जरूरी है ये, ठीक है? Now I'm coming back to the screen. फटाफट लिखना शुरू करो, और इसको जो समझ में नहीं आए फटाक से मेरे से पूछो कि मैम I didn't understand this word, can you explain it again? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगी, लेकिन तुम लोग अगर बिल्कुल सो जाओगे और आंख बंद करके लिखते रहोगे, then it is of no use, कोई फायदा नहीं है।
I am writing these words so that you can learn them and know them. लेकिन समझ ही नहीं आए तो फायदा क्या बताने का, इसलिए प्लीज पूछ लेना, ठीक है? Okay, coming back to the screen. Everybody can see the presentation again now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, feast. Third word is feast. Feast क्या होता है? कुछ स्पेशल मील, जो हार्टी मील हम लोग कभी कभी सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल्स पे, या कभी कभी हम लोग कुछ किसी को बुलाया या कहीं किसी फेस्टिवल में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए तो हम बड़ा सा ट्रेडिशनल मील जो खाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फीस्ट. So a special meal mostly to celebrate something or some festival, all right, or some occasion. Celebrate something के बजाय some occasion भी लिख सकते हैं, ठीक है? Something के बजाय मैं लिख देती हूँ some occasion. So, for example, on Diwali, we enjoyed a grand feast at my grandmother's house. Are you all writing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yatharth, Anish, Yes, ma'am. Sankhya, all are writing? Ajay? Yes, ma'am. हाँ, लिखो फटाफट. बहुत सारे वर्ड्स हैं, 12 वर्ड्स हैं, इसलिए जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है? और अच्छी हैंडराइटिंग में. We have to do a lot of activities in this class, मतलब lot of writing in this class, so be fast. क्योंकि हमारे पास आज की क्लास है ना, नहीं कल भी है शायद. Tomorrow also we have a class, ना? Yes, ma'am. Good. Ma'am, tomorrow is holiday. Tomorrow is holiday? Ma'am, 2 दिन class. Ma'am, tomorrow is Friday. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. tomorrow is not holiday. Tomorrow is not a holiday. Who said? Saturday, Sunday होता है ना तुम्हारा, फिर तुम्हारे vacations शुरू हो जाएंगे. Ma'am, from 24. From 24. So you have a class tomorrow. Okay, okay, don't, no more discussions. Start writing. And Done, tomorrow is ma'am. not a holiday, इसलिए ऐसा मत करना कि क्लास मिस करो कोई, ठीक है? You have to attend tomorrow's class. आज की और कल की क्लास बहुत important है. Okay, ma'am. Ma'am, done. We are learning such new words that I want you to all understand and write. Okay, fourth word. Moving to the next slide. इंग्लिश में बोलो. किसने बोला ये? मैम पीछे कर दीजिए, मेरा नहीं हुआ था. कैसे बोलेंगे? Ma'am, Ma'am, please show come back me to the previous slide. yeah, please come back to the previous slide. I did not finish writing. छोटे छोटे सेंटेंस कोशिश करोगे इंग्लिश में बोलने की तभी तो आएगा. घबराते नहीं है इंग्लिश बोलने में. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी. मैं बैठी हूँ ना करेक्ट करने English के लिए. is not tough. Yes, it's not tough at all. It is only the use of correct words. उसका नॉलेज होना चाहिए कि सही टाइम पे सही वर्ड्स यूज कहाँ करने हैं. जहाँ नहीं आए वहां पे टीचर से पूछो, है ना? आई एम देयर टू करेक्ट यू. But that doesn't mean you should not try. At least try तो करना चाहिए ना? Yes, ma'am. English is not Okay, write down. मुझे पता है तुम लोग को नहीं टफ लगती, समझ गई मैं. चलो. Ma'am, done. Okay. done. सबका हो गया कंप्लीट? No, ma'am. Yes, ma'am. Who is not writing? जो लिख रहा होगा ना फुल स्पीड में, उसका तो अब तक हो चुका होना चाहिए. I think 3 sentences are not very difficult to write. Ma'am. Feast, special meal mostly to celebrate some occasion. Example, on Diwali we enjoyed a grand feast at my grandmother's house.
कोई ऐसा वर्ड इसमें जो समझ नहीं आया हो? वैसे मैंने बहुत ही जनरल वर्ड्स यूज किए हैं ताकि तुम सबको ये सेंटेंसेस में समझ आए वो वर्ड कैसे यूज हुआ है. So feast is on Diwali we enjoyed a grand feast, yani grand meal, grand dinner, grand lunch, any meal which is I'm done. Ma'am, please move further. to enjoy a certain occasion. Yes, ma'am. Please move further. Now moving on, fourth word is scraps. SCRAPS. Vegetable scraps use किए थे ना चैप्टर में कुक ने. Yes, ma'am. Peels of vegetables. पेपर के भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स के भी हो सकते हैं, कोई प्लास्टिक, मेटल, किसी का भी अनयूज्ड पीसेस जो वेस्ट से लगते हो उनको हम बोलते हैं स्क्रैप्स. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड एंड यू कैन यूज इट वेरी वेल इन योर लैंग्वेज, क्योंकि हमें अक्सर वी आर यूजिंग समथिंग एंड जो हमें मतलब वेस्ट या अनयूज्ड चीजें बच जाती हैं, वी कैन यूज द वर्ड स्क्रैप्स फॉर इट, है ना. इफ यू डू सम क्राफ्ट वर्क, हमेशा कटिंग शटिंग में कुछ ना कुछ पीसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा रह जाते हैं ना, एंड्स या हमने जो कट किया, so you can all use the word scraps for it. These are the paper scraps left after I did my craft work. This is another sentence that you can make. The sentence that I have made from scraps is, the cook used the vegetable scraps to cook a new dish. देखो यहाँ पे दो कुक वर्ड यूज आए हैं लेकिन दोनों के मीनिंग्स अलग हैं. पहला कुक इज अ नाउन यूज्ड फॉर द शेफ, है ना, जो बना रहा था. द फर्स्ट कुक हियर, एक बार सब लोग स्क्रीन पे देखना प्लीज. यहाँ पे दिस, ये वाला जो कुक है ना, कैन यू सी मी अंडरलाइन द फर्स्ट कुक? Yes, ma'am. Yes. So this, the cook used. यहाँ पे what have I done? This cook, the word cook here refers to the person who is cooking, right? The chef. So this is a noun form of this word, cook, है ना? It's the noun form. और यहाँ पे क्या है? The cook used the vegetable scraps to cook a new dish. तो यहाँ पे कौन Second सा? cook is cooking. Yes, that is the action done. That is the verb form. So same word is being used in two different forms in this sentence. है कि नहीं? Cook, यहाँ पे कौन सा cook है? Noun, जो कि हमारे जो खाना बनाने वाला है उसके लिए हमने यूज किया है. Cook, जो शेफ है हमारा, जो बावर्ची है, जो खाना बनाने वाला है ना. तो यहाँ पे ये कौन सा है? Noun है ये cook. और यहाँ पे जो cook है ये कैसा फॉर्म है? ये verb है. Verb मतलब action word. Okay, so this is what I wanted to tell. क्योंकि दो जगह cook यूज किया है तो तुम लोग कहोगे ये क्या cook दो बार, लेकिन you have to understand कि कौन सा cook क्या है. This cook is the noun, the chef who has been cooking, and this is what he has been cooking. Verb. Okay. Next is the fifth word is fix. Fix मतलब in a fix करके आया था ना वो कि he was in a fix कि अब मैं क्या करूं. He Yes, ma'am. had very difficult, hard, peculiar, अजीबो गरीब situation, है ना. अजीबो गरीब. Fix मतलब it was a very difficult, hard situation. Peculiar मतलब अजीबो गरीब situation. जैसे for example, I was in a fix when I lost my wallet just when I needed to pay a bill. कि जैसे ही मैंने बिल पे करने के लिए वॉलेट निकाला एंड आई रियलाइज्ड, जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा वॉलेट तो कहीं गिर गया है, आई हैव जस्ट लॉस्ट इट. तो कितना अजीब सिचुएशन हो जाएगी दैट यू आर स्टैंडिंग समवेयर टू पे द बिल एंड यू सडनली कैन नॉट फाइंड योर वॉलेट और पर्स. तो कितना अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, राइट. सो दैट सिचुएशन इज बीइंग इन अ फिक्स, दैट इज इन अ हार्ड और peculiar situation. Are you all writing and understanding, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Write it. फिफ्थ तक कंप्लीट हो गया सबका या फिफ्थ लिख रहे हैं? मैम फिफ्थ लिख रहे हैं. Sixth complete हो गया. अच्छा लिखो. जिसका नहीं कंप्लीट हुआ Sixth one is फटाफट. completed. It's already about to be 8:30. Be fast.
Ma'am, done. Okay, so number 6 is whipped. whipped मतलब beaten. जैसे हम जैसे कर्ड को whip करते हैं, whipping, एक हमारे पास whipping स्पून होता है ना, एक गोल गोल सा, जिससे हम लोग केक का भी बैटर whip करते हैं, Yes, कर्ड ma'am. को भी whip करते हैं। तो और एक whipping क्रीम भी आती है जो बहुत अच्छे से फेटी हुई, जैसे फेटना कहते हैं ना हिंदी में, whipping. So that इसका actually I will show you the picture also. In the next class, I will put the pictures also in. Example, I always whip curd before adding it to any dish. हमेशा कभी भी किसी डिश में अगर दही डालना पड़ता है तो हम उसको हल्का सा फेंट कर फिर डालते हैं, है ना, चम्मच से या उससे स्पून से हमेशा उसको, हाँ, उसको whip करके हम we added. So the sentence that I have made is I always whip curd before adding it to any dish. Next, I'm changing the slide, okay? No, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Be fast, be fast. Ma'am, you can go further now. Wait. Whipped matlab beaten. Example, I always whip curd before adding it to any dish. I always whip curd before adding it to any dish. Ma'am, can you explain again? Which one beta? Sure, बताइए. Sixth one. Whip मतलब फेंटना. When you have to beat या mix something very fast, है ना, जैसे हम कभी दही डालते हैं, दही हम जब जमाते हैं तो एक अलग फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हम उसे किसी डिश में डालना चाहें तो आपने देखा होगा मम्मा हमेशा एक अलग उसमें लेके थोड़ा सा फेंटती हैं उसको. उसको फेंटने का मतलब होता है उसमें अच्छे से एयर अंदर जाना चाहिए ताकि वो फ्लफी हो जाए, और है ना, हम केक भी जब बनाते हैं तो हम बैटर को अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे तेज 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 हम लोग स्पून से उसको मिक्स करते हैं, बीट करते हैं उसको, so that it is more and more air can get into that dish and it becomes fluffy and tasty. So whipping मतलब बहुत तेज तेज मिक्स करना या बीट करना. बीट मतलब फटाफट फटाफट मिक्स करना किसी चीज को. बीट का मतलब यहाँ पे मारना नहीं है, दही को मार नहीं रहे हम. बीट मतलब मिक्स करना, टू मिक्स वेल एंड वेरी फास्ट. ओके Ma'am, please go further. ओके. नंबर 7 इज सर्वे. सर्वे मतलब इंस्पेक्शन करना, किसी चीज का निरीक्षण करना, जाके मुआयना करना, कहते हैं ना, निरीक्षण करने आए, इंस्पेक्ट करने आए, वो सर्वे करने आए. जैसे द चीफ मिनिस्टर took a survey of all city hospitals last week. सर्वे करना यानी इंस्पेक्शन या किसी भी चीज को अच्छे से उसका मुआयना करना, जानकारी लेना, निरीक्षण करना, that whether everything is all right or not. सब लोग ट्राई करेंगे अपने आप से एक एक सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, इन सभी वर्ड्स का. आई वॉन्ट यू टू मेक योर ओन सेंटेंसेस. इन दैट वे ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. And make your own sentences and send me on WhatsApp. Personal or group? Group. Okay, ma'am. Try and not to copy anybody's sentence. Make your own sentences. Group में सबका सब पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं करना है. आइडिया लेने के लिए ठीक है, लेकिन कॉपी नहीं करना है. You have to be creative and original. That is important. Okay? Be original in your sentences. सब लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे. और सब मतलब वो 10-12 बच्चे नहीं, सब लोग. ओके. Ma'am, done. 8th is staring. Staring मतलब looking continuously at. किस एक चीज को बहुत ही घूर घूर के देखना. Staring मतलब घूरना. So like everyone,
हाँ, everyone was staring at the queen when she arrived. जैसे ही क्वीन आई सब लोग उन्हें घूर घूर के देखने लगे, कंटिन्यूसली उन्हें देखने लगे. Everyone was staring at the queen when she arrived. Be fast. Everyone was staring at the queen when she arrived. Ma'am, arrived means Arrived मतलब जब वो एंटर हुई. सब लोग जैसे एक हॉल में बैठे हैं, और सब लोग वेट कर रहे हैं क्वीन का. जैसे ही उस हॉल में क्वीन एंटर करती हैं, अराइव करती हैं, आती हैं, एंटर करती हैं, तो हम लोग सब उनको देखने लगते हैं. इट इज लाइक दैट. अराइव्ड मतलब जब वो आई. When she came, everyone was staring at the queen when she arrived. मैम ये 8 वाले में लुकिंग के बाद क्या लिखा है? 8th वाले में लुकिंग के बाद क्या लिखा है? लुकिंग कंटिन्यूसली, लगातार. कंटिन्यूसली मतलब लगातार देखना. ओके, थैंक यू मैम. ओके बेटा. ma'am, कंटिन्यूसली what you have written at the top of arrived? came. नहीं लग रहा क्या? CAME. आई एम यूजिंग अ पॉइंटर पेन ना, तो बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग नहीं आ पाती उससे. और कंटिन्यूसली का मतलब मैं हिंदी में लिख रही हूँ यहाँ पे, लगातार. और ये लिखने नहीं है, ये समझाने के लिए मैं कर रही हूँ भाई. लगातार. ओ माय गॉड. समझ आ रहा है? लगातार. पीपीटी इसका मैम बनाने में टीचर तो के उसकी बात क्या है 9th वाले में? Teacher took, after the teacher took a class test. ओके मैम. Most. डन. मैम डन. पूरा पेज हो गया या 8th वाला हुआ है? अभी रुक जाओ. Ninth पूरा पेज. ninth word is, let me explain to those who have not understood. Ninth word is eager. Eager यानी हमने पढ़ा था उत्सुक, anxious, impatient. कुछ जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होना, बहुत ही, when do you want to know something really bad, you want to know it at any cost, you want to know. ऑल स्टूडेंट, जैसे हमने एक क्लास टेस्ट लिया किसी टीचर ने, और उसके मार्क्स आज आने वाले हैं, तो जिसका अच्छा हुआ होगा वो ईगर होगा ना, एंक्शियस होगा ना, कि मेरे कितने आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे, मेरे 20 मार्क्स में से कितने आएंगे मेरे, है ना. तो दैट इज ईगर. सो ऑल स्टूडेंट्स वर ईगर टू नो देयर मार्क्स आफ्टर द टीचर टुक अ क्लास टेस्ट. नेक्स्ट 10th word is flashed. 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 Rushed through या strike. Rushed through या strike. Flash करना एकदम से, चमक के आना. कोई आइडिया चमकता है ना, एन आइडिया के चेंज योर लाइफ में वो बत्ती जलती है ना, एक आइडिया वाली. Flashed, rushed through. All at once a light flashed out from the tower. कभी कभी तुमने लाइट हाउस वाला टावर देखा है? कभी वहां से सडनली एक लाइट चमकती है, बताने के लिए कि देखो यहाँ पे लाइट हाउस है शिप्स के लिए. So, उसमें से किसी टावर में से एक बीम ऑफ लाइट निकलना, वो कहते हैं फ्लैश ऑफ लाइट. ऑल एट वंस अ लाइट फ्लैश्ड आउट फ्रॉम द टावर. Then 11th word is traditional, related to tradition. This is easy. Traditional सबको पता है ना. Traditional मतलब related to tradition.
We mostly wear traditional clothes on festivals. Twelfth word is grounded. Grounded मतलब crushed to powder. Crushed to powder मतलब किसी चीज को अच्छे से पीस देना, है ना। कोई जैसे खड़े मसाले, कभी देखा होगा मम्मा को, वो लौंग इलायची सबको क्रश करके फिर डालते हैं, है ना। तो क्रश्ड टू पाउडर, पीस देना किसी चीज को। तो फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडेड हर्ब्स, कुछ पिसी हुई जड़ी बूटियां, हर्ब्स वर पुट इन द डिश दैट वी एट टुडे। आज जो हमने डिश खाई, दैट वी एट टुडे। एट इज द पास्ट टेंस ऑफ ईट। सो आज तो हम खा चुके दिन में, जिसके बारे में हम ये बता रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच इज एट। Grounded herbs were put, were again past tense. Grounded herbs were put in the dish that we ate today. हो गया? No, ma'am. No, ma'am. Page number 12 and 13 will finish, and then tomorrow we'll do question answers and rest of the book exercises. So I hope tomorrow we are able to finish off this chapter. Ma'am, done. Okay. Quickly complete. I'm done. Ma'am, done. Done? Ma'am, done. Ma'am, done. No, ma'am. Okay. No, ma'am. I'm done. Okay, now come to your, open your books and take out your pencils. Page number 12. जिसकी बुक में किया हुआ है ना, या तो वो चुप रहेगा या फिर अब तुरंत अभी रब करना, बिकॉज आई डोंट वांट कि किसी के पहले से बुक में हुआ है एंड दे आर शाउटिंग विद ऑल द आंसर्स, बिकॉज उसमें आपका अपना दिमाग कुछ नहीं लग रहा है। पहले का किया हुआ बोलने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सो डोंट डू दैट, लेट एवरीवन ट्राई डूइंग इट। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेज नंबर 12। जिसका हो गया दे कैन ओपन एंड सी देयर टेक्स्ट बुक्स। इसमें क्या है, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री जो कुछ खाने में डलती हो, सामग्री। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या क्या चीजें, क्या क्या सामग्री, क्या क्या रॉ मटेरियल, क्या क्या फूड आइटम्स यूज हुए हैं, are the things that are used to make a dish. Ingredients क्या होते हैं? They are the things that are used to make a dish. So circle. Ma'am, we have to write this. No, you have to just circle them. Circle Okay, the ma'am. ingredients. इसलिए take out your pencils and just circle them. Circle the ingredients of avial in the box below. ठीक है? Is everybody on page number 12? Question number 4. Yes, ma'am. Ma'am. सब लोग बुक में देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सब लोग। हाँ, अब एक बॉक्स है, उसमें हमें ढूंढना है कि अवियल में हमने क्या क्या डाला था। क्या हमने उसमें चिलीज, पहला वर्ड है चिलीज, क्या हमने चिलीज डाली थी? No, ma'am. Yes, ma'am. डाली थी, तो सर्कल कर दें क्या? Yes, ma'am. ठीक है, मैं Yes, ma'am. तुम लोग भी अपने पेंसिल से सर्कल कर सकते हो उसको। अच्छा, ग्राउंड नट डाला था क्या? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yes or no? No, ma'am. No, No, no. ma'am. No, ma'am. नहीं डाला था। वुड, वुड डाली थी क्या? लकड़ी ma'am. डाली थी क्या? No, ma'am. No, No, ma'am. लकड़ी चूल्हे पे उसने बनाया था, लेकिन लकड़ी उसके अंदर तो नहीं डाली थी ना डिश के।
अच्छा, क्या वेजिटेबल स्क्रैप्स डाले थे Yes, उसने ma'am. अवियल में? Yes, ma'am. को भी हम लोग सर्कल कर देते हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स को भी हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। Circle. ठीक है। अच्छा, क्या कोकोनट डाला था? डालो, कोकोनट को भी हम लोग सर्कल कर देते हैं, कोकोनट को भी सर्कल कर देते हैं। फिर रोस्टेड पीनट्स डाले थे क्या? No, ma'am. कर्ड डाला था, कर्ड? कर्ड तो डाला था, कर्ड डाला था। क्या पॉट जिसने बनाया था, क्या पॉट का पॉट ही डाल दिया था डिश में? पॉट के अंदर उसने डिश बनाई थी, लेकिन पॉट नहीं डाल दिया था उसके अंदर। गार्लिक डाला था क्या? डाला था। गार्लिक को भी हम लोग सर्कल कर देते हैं। ब्रोकन बैंगल्स, क्या टूटी हुई चूड़ियां डाली थी? No, ma'am. नहीं, बिल्कुल नहीं डाली। वो बास्केट डाली थी, बास्केट की बास्केट डिश में कर डाली थी। क्या करी लीव्स डाली थी? Yes, ma'am. करी लीव्स तो डाली थी, है ना? तो हम इसको ठीक है, कर लिया सबने? खा लिया? Yes, ma'am. It's done. ओके, क्वाइट, बोलो नहीं। चिलीज पे करना है, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, कर्ड, गार्लिक एंड करी लीव्स, इन सब पे हम सर्कल कर देंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इस बस इतना ही करेंगे हम लोग आज, उसके बाद हम लोग कल करेंगे। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। इज इट ट्रू और फॉल्स? Ma'am, डिनर था? True. ट्रू। कौन कह रहा है फॉल्स? तो किसने ऑर्डर किया था? मैंने तो नहीं कर दिया था डिनर ऑर्डर? No, ma'am. किंग नहीं किया था ना? शांतनु ने करा था? कौन कह रहा शांतनु ने करा था? भाई मेरे को पता नहीं शांतनु ने किया होगा तो भाई, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है किंग ने ही थ्रो किया था डिनर, किंग ने ही बुलाया था सबको, ताकि शांतनु को कह नहीं सकते, उसने हो सकता बुलाया हो। ओके, नेक्स्ट, नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड अवियल बिफोर। क्या ट्रू है, क्योंकि अवियल तो बाद में वेस्ट से बना था ना पहली बार, उससे पहले तो किसी ने टेस्ट नहीं था। नो वन हैड एवर टेस्टेड, तो ये सेंटेंस तो भाई सही है, क्योंकि पहले बना ही नहीं कभी, तो टेस्ट कैसे करेंगे लोग? So this is also true. Next is the cook had planned to make another dish using the vegetable scrap. No, Cook ने कुछ पहले सोचा था कि वो कुछ बनाएगा, जो सब्जी बच गई है उससे उसने सोचा था। No, ma'am. नहीं सोचा था ना, वो तो फेंकने वाला था उसको, वो तो जब तक किंग ने नहीं, हाँ देखो जब तक किंग ने नहीं बोला उसने तो यही सोचा था कि मैं फेंक दूंगा, उसने तो कुछ प्लान करी थी। सो अगेन दिस सेंटेंस इज फॉल्स। अगेन नहीं, ये तो पहले ये दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, ठीक है। सो आज हम इतना ही करते हैं। Coming back to the class now, we quickly close by doing Shanti part. ठीक है, ये complete कर लेना बेटा, and try and make your own sentences, okay, with these words, and try and learn the words today itself. और Okay, use ma'am. करना बेटा बोलते समय sentences में, ठीक है? चलो, join your hands, close your eyes. शांति शांति शांति।
Saira ma'am. Saira ma'am, bye ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Saira ma'am, bye ma'am.